Bismillahirrahmanirrahim. I am Bilal Rana. I have done my master's in education policy from the University of Rochester, US, as a USAID scholar. Apart from that, I have my primary master's in English language and literature from Government College University, Lahore. My educational career as a teacher spans almost 20 years. Mostly my teaching work was at Government College University and some other colleges in Punjab. I have also been a consultant with the Ministry of Culture, Iqbal Academy, Pakistan, written for various national publications in the opinion pages. And apart from that, I have various research interests also. Today I am here to deliver a talk, an expose on the CSS Precis and Comprehension paper, which is a source of concern and worry for many CSS aspirants. First of all, I would like to thank Mia Shafiq for his generosity and his supervision of this page and for facilitating us to come and share our views with you. And I would also like to thank Mr. Waqas Iqbal from IR Academy for CSS Lahore. He has facilitated this whole paraphernalia as well as this informative, I hope, talk regarding this paper. I would be starting coaching classes at IR Academy for CSS from next week. I welcome you all, the participants, the CSS aspirants who are always very intrigued about various dimensions and aspects of English essay as well as English Precis and Comprehension paper. Now, as far as the Precis and Comprehension paper is concerned, I believe that first of all we should start with the basic requirements that CSS English requires. I personally feel that for English language paper in any situation or in any dimension, we need two primary aspects. First is to be correct, and secondly to be communicative. Now, when we talk of being correct, it means to be grammatically correct. Our sentence structure should be correct. Otherwise, however impressive we are, however effective we are, if our sentence is not correctly written, then we won't be evaluated, rather our marks would be deducted. So first step is to have that basic acumen, basic understanding of the sentence structure. Number two is communication. Now, communication is a vast term because communication can be effective communication, it can be poor communication, it can have a lot of words, a lot of verbosity, but actually signifying nothing for the examiner. So, communication in modern times for me and for many of the publications or published works that we see is more about directness. It is more about being effective rather than being verbose. हमारे यहाँ क्योंकि हम एक नौबादियाती निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वी वर कॉलोनाइज्ड है, तो हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती है ज़्यादातर वो आज तक उसको हम पर्पल इंग्लिश कह सकते हैं। एक ऐसी अंग्रेज़ी जिसमें हम लफ्ज़ों की भरमार करते हैं लेकिन उन लफ्ज़ों के तहत जो जुमले की साख्त और मानवियत है वो अपने मतलब खो जाती है। और हमारा गिला बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरे पिछले 7-8 साल CSS पढ़ाने के दौरान इत्तफाक हुआ बात करने का, उनमें से अक्सर मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि जी हम अपनी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करें। और मेरा जवाब अक्सर उनको ये होता है कि द रियल प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद वोकैबुलरी, द रियल प्रॉब्लम लाइज विद द यूजेज ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी इन योर वोकैबुलरी एंड दैट यू डू नॉट एम्प्लॉय बिकॉज यू डू नॉट practice. So the key area is practice. Improving vocabulary is a component, but vocabulary improvement is a lifelong process. You just cannot memorize and cram some words, 800, 900 words in some months and make a part of your personal expression. That is unnatural. So जो लोग
आखिरी वक्त में वोकैबुलरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो अपना फ़ायदा करने के बजाय अपने एक्सप्रेशन को मज़ीद मुबहम करते हैं और अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। उससे बेहतर है कि जो वोकैबुलरी उनके पास है उसका सही इस्तेमाल करें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसकी सही लोगों से एवेल्युएशन करवाएं, जो क्रिटिकल इनपुट दें उन्हें और जो उन्हें ये समझा सकें कि जो उनके पास एग्जिस्टिंग बैंक है वोकैबुलरी का, उसका इस्तेमाल मौसर तरीके से किस तरह किया जाए। दैट इज़ माई पर्सनल टेक। सम मे एग्री, सम मे नॉट एग्री विद दैट। I always encourage to build vocabulary, but not at the cost of your content, not at the cost of your effective expression. अब हम प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन के पेपर की तरफ आते हैं और कुछ जनरल उसके बारे में बात करते हैं। एक तो यह है कि प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन का जो पेपर है ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts. You all know 20 marks are reserved for the objective portion and 80 marks are for subjective portion. Now, as far as the objective portion is concerned, it is rather primarily concerned with vocabulary. And when we talk of vocabulary, it is about analogies, about the antonyms and synonyms. अब vocabulary की इंतहा कोई नहीं, आप पूरी डिक्शनरी भी याद कर लें, आप 5000 अल्फाज पे कोई मुश्तमिल किताब भी याद कर लें, लेकिन for ready reference, I would say that there are certain books for GRE examinations which have very well thought out, crafted word lists. And those word lists, let's say, have 50 words in each, 50 exercise with 15 words, almost 700, 800 words. Now, to cover the basics, to cover the trickiest words, I think as an initial attempt, those lists are necessary, more than necessary. उससे आगे अगर कोई जाना चाहे तो there is always a room for improvement. That is the biggest room in the world. Subjective की तरफ हम जब आते हैं तो subjective में I would personally like to categorize various portions according to the skill set that they require. कि हमें बुनियादी तौर पे उनके लिए किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी का जो इम्तिहान है वो आपकी याददाश्त का इम्तिहान नहीं है। इस पर्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जिसमें यू हैव टू क्रैम फैक्ट्स, यू हैव टू मे बी रिमेंबर डेट्स, दैट रिक्वायर्स रिटेंशन. Here we require skills. Now when we are talking of skills, there are some basic skills like reading, like writing, like listening, and so forth. I would like to give a new dimension to this whole idea of skills for this paper. I believe that the first skill that concerns the Prezi as well as the question answer question, which we call comprehension, this portion, which is the most challenging portion, it is skill intensive. ये दो सवाल जो हैं प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन के, ये आपसे स्किल्स की डेवलपमेंट चाहते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि आपसे मेहनत नहीं चाहते. All the portions that I am talking about are labor intensive also. They require a lot of practice, but practice without any direction, practice without any logical end won't amount to anything, because we are talking about a skill. We are not talking about retaining facts. उसके बाद the other part is for me primarily labor intensive. I would include pairs of words, idioms, phrasal verbs, even prepositions in this category. क्योंकि phrasal verbs हो, idioms हो, आपका prepositions हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, तैयार करनी है. ये क्लासरूम सेटिंग में आपको याद करवाई नहीं जा सकती. दे कैन ओनली बी टेस्टेड, दे कैन बी एवेल्युएटेड, लेकिन ये वो काम है जो आपको बिल्कुल उस तरह करना है जिस तरह 5वीं 6वीं के बच्चे चीज़ें याद करते हैं कि एक तरफ हाथ रखा, उसका मतलब देखा, उसका जुमला थोड़ा सा याद किया, उसका सेंस लिया और फिर आगे गए. दूसरे सफ़े पे जाके फिर पहले और दूसरे को मिलाया, उसको याद किया, एंड यू गो ऑन. और इसमें अगेन मैकमोटी की अब किताब हम ले लें, 5000 उसमें इडियम्स है.
कहने वाले ये कहते हैं कि वो 5000 ईडियम्स भी किए जाएं तो CSS में उससे भी बाहर आ जाते हैं. So there is no limit to improvement in language, but I would suggest that rather than concentrating on one good book for idioms and phrases, और वो बहुत ज़ख़ीम किताब ना हो, 500-700 उसमें idioms हो, rather than considering one book for all these questions and practice, you always consult 2 books. उसमें अगर एक ऑथर जो है कोई एक डायमेंशन या कोई 50-60 ईडियम्स मिस कर देता है तो दूसरा ऑथर उसको कवर करता है. आप इन दोनों किताबों से 1200 ईडियम्स याद नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों किताबों से आपको अगर 1 से 700 करने पड़े, इन दोनों किताबें मिलकर 850 ही करने पड़ेंगे. सो द वर्क इज नॉट मच, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द मैक्सिमम questions within your grasp, that becomes very easy, very approachable and very possible. So ये 3 या 4 चीज़ें जो हैं लेबर इंटेंसिव है, प्रैक्टिस मांगती हैं, और फिर अगर आप इसके टेस्ट देना चाहें तो वो मज़ीद इस चीज़ को आपकी रिविजन में और आपकी प्रैक्टिस के अंदर लेके आता है. फिर एक तीसरी कैटेगरी है विच आई वुड कॉल रूल इंटेंसिव. उसके अंदर, और everything is labor intensive, of course. Everything requires practice, everything requires supervision, everything requires testing, evaluation, and your discipline, self-discipline and motivation and inspiration for the cause. उसमें रूल इंटेंसिव जो हैं उनमें मैं सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ आपकी अंग्रेज़ी की सलाहियतों से ज़्यादा वो रूल्स हैं जो आपने सीखने समझने हैं, जो आपने 6वीं 7वीं में याद किए या प्रैक्टिस किया और उसके बाद भुला दिए. कुछ याद हैं, कुछ नहीं. उनको दोबारा ब्रश अप करने की ज़रूरत है और उनका स्टैंडर्ड रेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो आपको सवाल आएंगे वो उस मयार के नहीं आएंगे जो 6वीं या 7वीं में आते थे. नाउ इट वुड बी अ मोर कॉम्प्लेक्स, अ मोर इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिस तरह आपने देखा कि आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में आता है, डायलॉग्स की फॉर्म में आता है. तो यू हैव टू मास्टर द रूल्स, you have to ask anybody about those rules, you have to practice them, you have to get them evaluated and move forward. बिल्कुल इसी तरह ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन. और ट्रांसलेशन का सवाल हमारे पास रिसेंटली आना शुरू हुआ एंड इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. अब ट्रांसलेशन के लिए यू हैव टू गो बैक टू दोज बेसिक टेंस स्ट्रक्चर्स दैट वी यूज टू स्टडी. I know that people have the ability, they have the acumen, they have the intellect to approach that question directly. लेकिन there is a catch in it. Translation, some people are of the view that translation should be literal. Some people say कि इसका सिर्फ मफ़हूम अदा कर दिया जाए तो काफ़ी है. लेकिन जब आप मफ़हूम अदा करते हैं और बहुत जनरलाइज सेंस में बात करते हैं तो कई दफ़ा कुछ बुनियादी अल्फाज जिनका तर्जुमा आपसे इम्तिहान वाला चाह रहा होता है आप वो मिस कर जाते हैं. आप उस टेंस में बात नहीं कर रहे होते जिस टेंस के अंदर सवाल किया गया है. तो एक बात जो जहन में रखने की है कि ये दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज नॉट ट्रांसलिटरेशन कि जिसमें आप मफहूम बयान करके हर. इट शुड बी अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन बट with a flavor of continuity and uniformity in the passage. टूटे फूटे फिक्रे ना नजर आए, पैराग्राफ में एक यकसानियत नजर आनी चाहिए, लेकिन you don't have to sacrifice words, you don't have to sacrifice the essential structure and demand of the Urdu paragraph. And similar is the case of punctuation. Punctuation is all about rules. You don't have to be really adept at language as such. If you have a basic understanding of the language and you have a grasp of the rules, plus you practice those rules, plus you have them evaluated, plus you have them checked by someone, that is the way forward. So अगर हम इन 3 चीज़ों की तरफ आते हैं तो we can safely categorize that one is skill intensive, the précis and the comprehension. The other is labor intensive, which is regarding phrasal words, idioms, phrasal verbs, and prepositions. Then this is rule intensive, active passive, direct indirect, translation and punctuation. Now these skill sets, these labor intensive things, these rule intensive things, these intermix. मैंने आपको जिस हवाले से बताया वो ये कि ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में किस स्किल की ज़्यादा डिमांड. उसके बाद अगर हम इनमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को लेते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो बताया कि ऑब्जेक्टिव के जो 20 मार्क्स हैं, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव दैट GRE लिस्ट
which covers some of the complex and some of the relevant words that are required for the CSS objective paper. उसके बाद जब हम बाकी 80 नंबर के पोर्शन पे आते हैं जो सब्जेक्टिव का है, तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें नज़र आता है और जो स्टूडेंट्स की तरफ से बारहा कई साल से मुझे देखने में नज़र आया, वो दैट इज़ अबाउट द प्रेसी एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन। कि जी प्रेसी जो है वो नहीं होती। इस दफ़ा फेल इस वजह से हो गए कि जो है वो प्रेसी इतनी मुश्किल आई कि उसके बाद मज़ीद पर्चा जो है वो करना लाहासिल नज़र आया। Frankly, I do not want to make things oversimplified, but I do not buy this argument that Prezi and comprehension are not within our reach. मेरे ख्याल में it is how we approach the whole thing. अब Prezi में हमें required क्या है? Prezi के 2 या 4 मेन रूल हैं। एक तो ये कि चूंकि आपने उसको मुख्तसर करना है, उसकी तलखीस करनी है, 1/3 करना है, 1/3, फिर उसमें नो एज मच एलिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज एज पॉसिबल, उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चंद बुनियादी इस्तिलाहात के अलावा, और अपने ख्यालात का इजहार नहीं करना। सो रूल्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन असल में इसमें स्किल क्या रिक्वायर्ड है? इसमें एक तो रीडिंग स्किल रिक्वायर्ड है, देन यू हैव टू असिमिलेट एंड अंडरस्टैंड द होल पैसेज, एंड देन after assimilation you have to express that in your own words, intelligible words, in sentences that make sense, which connect as a paragraph. मेरे ख्याल में there are many ways to attempt a Prezi, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप बहुत सादा तरीके से एक प्रोसेस फॉर्म करें, मसलन मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर अ कैजुअल रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पे किसी चीज़ को जहन पे सवार किए बगैर उसको एज अ पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ें, इंफॉर्मेशन का। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन पे लफ्ज़ों को जानने का, फैक्ट्स को याद रखने का बोझ नहीं होता, और आप एक ओवरऑल इम्प्रेशन और मेन आइडिया उसके बारे में बना लेते हैं, जो प्रेसी की बुनियादी ज़रूरत है। एज अ सेकेंड स्टेप यू गो फॉर दी, ये कैजुअल रीडिंग 4 या 5 मिनट की रीडिंग है। उसके बाद the second reading would be the most important, that would be the intensive reading. उसमें आपने सिर्फ क्या करना है कि I would say कि like a physics paper or a chemistry paper, you have to bracket the main ideas. एक पूरी प्रेसी में 5, 7 या 4 या 5 आइडियाज होते हैं, आपने ब्रैकेट्स लगानी है जहाँ से एक आइडिया शुरू हो रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। जब वो 5 या 6 आइडियाज आपके पास आ जाएंगे, योर थर्ड स्टेप वुड बी कि उनमें से हर एक आइडिया को 1 या 2 सेंटेंसेस में सादा डायरेक्ट अल्फाज में लिखें, तो आपके सामने प्रेसी का एक इनिशियल ड्राफ्ट आ जाता है। एंड दिस आई वुड एडवाइज इन द रफ ड्राफ्ट। जब आपके पास वो आ जाएगा, आप लफ्ज़ गिन लें, जितने लफ्ज़ ज़्यादा कम हो वहीं उनको एडजस्ट करें, और उसको एक यूनिफाइड होल बना के आप प्रेसी की फॉर्म में लिख दें। यू आर नॉट मिसिंग अ सिंगल पॉइंट दैट वाज देयर इन द पैराग्राफ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं पूरी प्रेसी का आइडिया बना लूँ, और किसी ने मुझे ये समझाया कि जब आइडिया बन जाए तो अपने अल्फाज में लिख दें। आई थिंक दैट वुड बी लाइक फायरिंग शॉट्स इन द एयर। या तो ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो जो सिमुलेट करने की उसकी साल की प्रैक्टिस हो, वो तो ये कर सकता है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट्स हुज करियर इज एट स्टेक, दिस इज फॉर मी इज नॉट एडवाइजेबल। इसको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, एंड देन इट बिकम्स वेरी ईजी। अगर कोई इसमें आपको बेइंतहा नंबर नहीं भी देता, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कम से कम आपके फेल होने की नौबत इस पर्चे में नहीं आएगी प्रेसी की हद तक। एंड द सेम गोज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में भी यू हैव टू असिमुलेट अ पैराग्राफ, बट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। उसमें यू गो फॉर वन कैजुअल रीडिंग, यू फॉर्म द मेन आइडिया, देन नंबर 2 सवाल पहले ना पढ़ें, सवाल पहली कैजुअल रीडिंग के बाद पढ़ें। जब आप दूसरी दफ़ा सवाल पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ आप जो जवाब आपने पहले पैराग्राफ में पढ़े हैं दूसरी रीडिंग दें, और ब्रैकेट्स लगाएं उन जगह पे जहां पॉसिबल सवाल का जवाब है। और इसमें एक छोटा सा क्रैकिंग द पेपर कि आमतौर पे CSS में पिछले साल से देखा ये गया कि जो पहला सवाल है उसका जवाब पहली 2-3 लाइनों में होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां दे कम क्रोनोलॉजिकली। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तीसरे, चौथे, 5वें का मिल गया, दूसरे का नहीं मिला, तो दूसरा पहले और तीसरे के दरमियान वाली किसी लाइन में होगा, आप वहां ढूंढेंगे, यू विल गेट द आइडिया। यू डोंट हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन in this question or in the Prezi question.
until and unless asked by the examiner. Give your opinion. Your opinion is not required, your understanding of the passage is required. और प्रेसी के सवाल में आपको मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल अल्फाज और मुश्किल स्ट्रक्चर्स का सहारा ना लें. आप जितना डायरेक्ट होंगे, जितना असल कंटेंट को सादा अल्फाज में बयान करेंगे, आप उतना ही मौसर तरीके से प्रेसी का सवाल कर सकेंगे. Now this is a brief overview of the Pressy and comprehension question, and this covers 50% of the subjective paper and the trickiest part, because most of the rest is labor intensive. जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आएंगे या एक्टिव पैसिव वॉइस पे आएंगे तो उसके आपके रूल्स करने पड़ेंगे, उसकी आपको बेइंतहा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसको आपको चेक कराना पड़ेगा, उसके मुश्किल से मुश्किल फॉर्मेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. इसी तरह फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, इडियम्स के बारे में या पेयर्स ऑफ वर्ड्स के बारे में there is frankly nothing that I can offer but sources and continuous practice and labor. और उसके लिए the sooner the better. आखिरी 15 दिन में ये चीज़ें याद नहीं होती, ये भूल जाती हैं और बहुत अहम काम करने होते हैं. ये चीज़ 2-2, 3-3 सफ़े करके अगर आज करना शुरू करेंगे तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आखिरी 15 दिन में these just cannot be controlled. और आपके 40 नंबर ये सॉलिड और 20 नंबर 60 इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं, जो सॉलिड मार्क्स हैं, इनमें से अगर आप 30-35 ले लेते हैं, 40 के करीब ले लेते हैं, मैं 60 के 60 भी नहीं कह रहा, तो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इन तरीकों से सॉल्व करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इजीली स्कोरिंग समवेयर अराउंड 60 और मोर दैन 60. सो ऑब्जेक्टिव्स में गुंजाइश ही नहीं है कि आपने कम नंबर लेने हैं, क्योंकि अगर आपने इनमें बहुत नंबर ले दिए तो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन चाहे आपकी कमज़ोर हुई हो, आप पास हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने उनमें अच्छे नंबर ना लिए और प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन पे सारी मेहनत कर दी, स्किल डेवलपमेंट में कर दी, तो आप नंबर इनमें अच्छे ले लेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ 40 नंबर का सवाल है और इसमें बहुत ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं, पूरे के पूरे तो नहीं आ सकते. So when you are confronting a paper, you confront it holistically, not in parts. You balance out your energies equally in all directions. उसके बाद जो बात मैं ख़ास तौर पे करना चाहूँगा वो ट्रांसलेशन के बारे में भी करना चाहूँगा, और इसमें मैं ट्रांसलेशन का पिछला जो पेपर है उसके बारे में भी बात आपसे करूँगा कि ट्रांसलेशन जो है ये रिसेंटली इंड्यूस्ड एक फिनोमेना है, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें सिर्फ मफहूम की अदायगी नहीं, इसमें हमें लिटरल ट्रांसलेशन की तरफ भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है. मसलन हमारे पास पिछली दफ़ा जो पैराग्राफ आया था वो लाहौर शहर के बारे में था, और अगर आपके सामने वो पैराग्राफ हो कि लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का भी कदीम मरकज़ है, सो आपके सामने अगर ये पेपर हो तो इसमें बड़ा आराम से नाउ देयर कैन बी 1000 ways टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ आपकी सहूलत के लिए एज अ मॉडल अगर मैं इसको कहूँ इसी पैराग्राफ को कि द सिटी ऑफ लाहौर इज नॉट ओनली एन ओल्ड पॉलिटिकल सेंटर बट ऑल्सो अ कल्चरल सेंटर. द मुगल कल्चर एक्सपीरियंस इट्स पिनिकल इन द सिटी. इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ सिख कल्चर. दिस सिटी ऑल्सो हार्बर्ड द कल्चर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर. This was also the center of Sufism. The author of Sufism's famous book Kashf al-Mahjoob, Hazrat Ali Hajweri, famously known as the Dataganj Bakhsh, is also buried in the city. Even during the British era, the fashion of Lahore was followed in entire Hindustan. The city did not lose its importance even after the establishment of Pakistan. अब इसमें मुश्किल अल्फाज या इम्प्रेसिव अल्फाज का इंतखाब भी मुमकिन है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मुमकिन है, लेकिन अहम बात यह है कि वी जस्ट कांट अफोर्ड टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट. एंड व्हेन वी मेक अ पैराग्राफ इट सीम्स लाइक अ यूनिफाइड होल रादर दैन अ फ्रैगमेंटेड पार्ट. पिछले साल का अगर आप कॉम्प्रिहेंशन का पेपर देखें तो उस कॉम्प्रिहेंशन का जो सवाल था जिसके अंदर सिविलाइजेशन की बात की गई, जिसके अंदर साइंस की बात की गई,
उस सारे के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आखिरी सवाल में ये पूछा है, मेंशन सम प्लान्स यू मे हैव टू प्रिवेंट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, हु वुड रिसीव योर मोस्ट पर्टिकुलर अटेंशन एंड व्हाई। अब यहां उसने अनलाइक मेनी प्रीवियस ईयर्स हैज कंप्लीटली आस्क्ड योर ओपिनियन, और वो ओपिनियन जो है, नाउ योर ओपिनियन I think should be something that reflects your vision. This for me is the most important question because this requires your original input. Poverty खत्म करने के लिए अगर आप कहें jobs create कर दें, आप कहें education दे दें, आप कहें लोगों को पैसे दे दें, आप subsidies दे दें, आप economic improve करें, these are only parts. Now what I believe is that if you want a sustainable solution to end poverty, that should be human resource development. Because if human resource is empowered, then the concept of poverty is gradually diluted in the society because human beings become capable to solve their own issues themselves rather than the state doling out incentives and cash strapping itself. So ऐसे जो सवाल हैं उनमें you have to be very intelligent and very particular and focused while answering. और अगर आप इनसे पहले के सवाल देखें तो आप पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, अब ये मेरे पास हैं और इन सवालों के जवाब मैं जब देखता हूँ तो पहला जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास तीसरी लाइन में जहाँ लिखा था मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ टिल एनिमल्स तकरीबन 7-8 लाइनें हैं जिनमें से हमें 3 या 4 लाइनों का जवाब अपने लिए चुनना है. सो दैट रिक्वायर्स असिमिलेशन एंड दैट रिक्वायर्स अ प्रेसी, लेकिन इन योर ओन वर्ड्स, टू यूज as little words as possible and to use them as effectively and as coherently as possible. इन प्रेसी को और इसको हम अलहदा से सॉल्व करने की भी बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल so we have a break for a while because of the azan and we will continue afterwards. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. We resume again after the azan. So मैं आपसे बात कर रहा था कि इंडिविजुअली हम इस प्रेसी को भी बात कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व किया जाए, कॉम्प्रहेंशन को भी, लेकिन अहम बात उन असूलों की है जिन पे वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. मेरा ख्याल है कि अगर उन असूलों को जहन में रखा जाए और अहम बात ये कि उनको प्रैक्टिस किया जाए और उनको एवेल्युएट किया जाए या करवाया जाए, जो भी तरीका आप मुनासिब समझें. To sum it all up, I believe that CSS as an exam has been sometimes unnecessarily pronounced as beyond an average mind's grasp or beyond an average student's capacity. I don't believe so. I feel that it requires an average person or an even above average person to have serious conviction and then more importantly application. कि एक तो आपकी उसके लिए जो ड्राइव और ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा, और सिर्फ ख्वाहिश ही ना हो बल्कि उस ख्वाहिश की तकमील के लिए जो आपकी एफर्ट है और जो आपकी कोशिश है वो सी दुगनी हो. और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि अगर आप में ख्वाहिश भी है, आप मेहनत भी कर रहे हैं,
तो आपकी अप्रोच जो है वो बैलेंस्ड हो, आपकी सिमत जो है वो मुतय्यन हो। बिकॉज इफ यू कीप ऑन वर्किंग without a vision, without a direction, without a strategy, unfortunately, all your intentions, all your inspirations, all your efforts would go down the drain. एक तरफ तो CSS को बहुत मुश्किल करके बयान किया जाता है, which makes some people happy, which makes some people comfortable. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत आसान इम्तिहान है, लेकिन मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी अचीवेबल एग्जामिनेशन. एंड एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, इंग्लिश prescient comprehension paper, or to an extent the English essay paper, they are not as difficult or they are not as tricky or dangerous as people propagate them to be or as people dictate them to be. Of course, you need good English skills, reasonable English skills, you need effort, but then you need a strategy. You need practice evaluation, you need somebody who can work with you, you need proper environment for that, and you don't need to be unnecessarily afraid. You have to be cautious, क्योंकि एहतियात इंसान को मेहनत की तरफ राग़िब करती है, लेकिन खौफ इंसान की सलाहियतों और तवानाई के लिए ज़हर कातिल है. सो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि हमने ऐसे की भी बात जो है वो इस दौरान की, एंड वी विल बी गिविंग अ टॉक अबाउट द एसे पेपर सून ऑन द सिमिलर पैटर्न दैट वी हैव अ टॉक हियर. And we will discuss how different essays can be unlocked, how should we prioritize while selecting an essay, what kinds of essays are as you say safe, or what kinds of essays are slightly dicey, जिनको हाथ लगाने से पहले 2-4 दफ़ा सोचना चाहिए. So we'll have that talk very soon. लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो आखिरी 2-3 माह रह गए हैं, इनमें मेरा आपके लिए सबसे बड़ा जो एक तरह से, because giving advice and suggestion, that is the easiest part. Following that is something that requires great discipline and application. कि ये 2-3 महीने they are very vital. आपने इससे पहले जितनी मर्जी तैयारी की या नहीं की, अगर ये 2-3 महीने आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर लेते हैं, you do not let your confidence down, you do not keep your fears strangle your talent and intellect, then your way forward will be easy. Then I am confident that CSS, whether you achieve it or not, that is not the question. It would be a learning curve that would give you advantage, that would give you dividends in many things that come in your life later. So keep yourself composed, keep yourself intact, and work harder than you have done before. I wish you all the very best of luck. I wish that whatever you are aspiring in your lives, and specifically the CSS examination, that comes to you easily and that makes your life worthwhile, and that enables you to serve this country and the people of this country as they deserve to be served. I wish you all the best, and I wish that you become strong, you become purposeful, you become focused, that you find the talent within yourself and you are able to tap that talent into the CSS examination to the best of your abilities.
Allah Hafiz. Thank you very much. Stammt?